Representing your constituency in this power corridors of the parliament in Delhi. When the decisions will be announced on 4th of June, it will be your vote that will make the fate of that leader and help your issues be addressed. And the focus today is Delhi as well. National capital, which is the power political center, 7 seats up for grabs. It was initially, remember, at least for the past tenure, has been for the BJP. Candidates were changed, barring Manoj Tiwari, and then what happens this time remains to be seen. Of course, Ramesh Biduri also continues to be in the fray. Let me immediately take you through with national capital seats. Remember, 7 seats where Aam Aadmi Party and the Congress Party have had a seat-sharing arrangement, and then there is the NDA candidates. That's Basuri Swaraj, the political debutante, daughter of former External Affairs Minister Sushma Swaraj. A huge opportunity, but a big responsibility also on her shoulders, because BJP has been strong in the parliamentary constituencies of Delhi. Will she be able to retain the posh New Delhi constituency? One of the first voters, External Affairs Minister S. Jaishankar, on your screens as well. Senior ministers have early this morning been the front runners when it comes to the early voters, including Union Minister Hardeep Singh Puri as well. Remember, with a clean sweep for the BJP in general election, both in 2014 and 2019 for Delhi, AAP and Congress combined this time are challenging that stronghold of the BJP in the parliamentary constituencies. Gautam Gambhir, former MP East Delhi, this time not a candidate but one of the first voters coming in. And that's a good messaging, because remember, at this time, for the national capital, that hasn't really shown when it comes to the Member of Parliament elections, a very high turnout. What will it be this time? Virendra Sachdeva also casting his vote. विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए, भारत माता की जय। इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि वो 7 सीटें जीत रहा है दिल्ली में। सपने देखने का हर एक को हक है। मैं किसी को सपने देखने से रोक नहीं सकता हूँ। आगे क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि टक्कर है, आपको पहली बार यहाँ पर टिकट मिला है, तो आपको ये लग रहा है कि पिछले 2 बार बीजेपी की जीत तो हुई, उसका कहीं ना कहीं एक फायदा है, लेकिन नया चेहरा होने के नाते चुनौतियां हैं। हमारे पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है, समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है, काम करने का जज्बा है। हमारे नेता ने काम करके दिखाया है। पूरा चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा गया है कि एक तरफ जो मौजूदा सरकार है उसकी फेल्योर है 100%। महंगाई देख लें आप, बेरोजगारी देख लें, किसानों का मुद्दा देख लें, मजदूरों का मुद्दा देख लें, इंडस्ट्री का देख लें, व्यापारी का देख लें, इंटर स्टेट रिलेशन देख लें, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें सरकार सफल रही हो। आर्थिक जो नीति उसकी रही, उससे बेरोजगारी बढ़ी बेशुमार। तो ये सारे मुद्दे, और फिर हमारे इलेक्शन प्रोमिसेस हैं जो हमने गारंटी दी है महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगार को। At this booth, the first male voter, want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत को अपनी वोट देगी। We start early. I hope there's a very strong turnout in Delhi, like there is in rest of India. वोटर मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है, और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। वोटर्स बाहर आ रहा है, वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, दिल्ली का हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करे। All I want to say is that everyone should come out and vote for in as large numbers as possible, because this is our power, this is our democracy, and to make democracy even more powerful, I think it's important for people to come out and vote in large numbers. पहली बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि संगठन के नाते आपने पूरे हरियाणा में बहुत काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त भी संगठन देखते थे, तो आप दोनों ने मिलकर काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि 2 बार के विधायक, पहली बार भी 14 में लड़े आप, उसके बाद सेकंड टाइम, अब लोकसभा पहली बार, क्या फर्क समझते हैं? देखिए, जहां तक काम की जिम्मेदारी है, विधानसभा में 2 बार चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाते से जो मैंने अपना दायित्व देखा, संभाला, बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। जनता की मैंने सेवा की। अब नया दायित्व लोकसभा के चुनाव के बाद क्या मिलेगा, ये हमारे जो नेता हैं वही जानते हैं। उस विषय में मेरा कहना उचित भी नहीं है। जो दायित्व मिलेगा उसी प्रकार से जनता की सेवा के भाव से वो पूरा किया जाएगा। मनोहर जी, हरियाणा में 2 बार आप मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा के आपके काम या मोदी का नाम?
देखिए, मोदी जी का नाम भी है, मोदी जी का काम भी है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का नाम, मोदी जी के काम, वही जनता पर हावी प्रभावी हैं। ये ठीक बात है कि प्रदेश सरकार ने भी अपने कुछ काम किए हैं जिसको जनता याद करती है। तो जब जनता कोई निर्णय लेती है तो दोनों चीजों को मिलाकर के लेती है। मनोहर जी, एक सवाल और, कांग्रेस कह रही है कि इस बार हरियाणा में स्थिति अच्छी नहीं, हालांकि वो तो कह रहे हैं सेंटर में ही सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का, एनडीए का। मैं किसी विपक्ष के नेता का या किसी दूसरी पार्टी के नेता के इस प्रकार के क्लेम का ना कभी जवाब दिया है, ना मैं देने वाला हूँ। ये जवाब है जनता के जिम्मे, और आज तो जनता सब काम कर चुके हैं। जनता उस परीक्षा जो पत्र हमने लिखा है अभी तक, उसकी मार्किंग जनता कर रही है, और 4 जून को उसका परिणाम निकलेगा। जनता So, from Haryana, where former Chief Minister Manohar Lal Khattar is contesting from Karnal this time, the constituency, he was also an MLA earlier.